A very pleasant morning to all the dear students of class 6. Today in this video we are moving further with our chapter 3, and we will be going to discuss the section 3.4, that is divisibility test or the test for divisibility of numbers. So in this section we are going to test the divisibility of numbers by different numbers, like if a given number is divisible by 2 or by 3 or by 4 or by 6, how would we check that the given number is divisible by another number that we want to check or not? So for this, by using different patterns, by getting the different patterns, we have got to the conclusions that when do we say that a number is divisible by 2, or when do we say that a number is divisible by 10. So talking about that results, today we will discuss the divisibility by of any number by 10, by 5, by 2, by 3, by 6, by 4, by 8, by 9 and by 11. Okay, like you may think that how do we know that a number is divisible by 7 or not? Means the divisibility test for 7. So the divisibility test for 7 is not available, because when we try to find a pattern of the divisibility, we could not get to a one pattern in the case of 7. So when we want to check about the 7, we have a case, but it is not applicable to each number, so therefore we cannot generalize that proof or that result. Okay, so apart from that, like I'm going to discuss the divisibility by different numbers, and I will explain each and every divisibility test. Just you have to understand it and make these notes. These will be available to you in Google Classroom also, so understand. And the explanation that I'm doing is on the separate sheet. Okay, so first, taking, and you need not to write the explanation. Okay, you just understand the explanation and just write these notes. So starting with the divisibility by 10. So when we divide different numbers by 10, like you can see, like I have 20. Okay, 20 is divided by 10, it means 20 by 10. So this is 2, or 10 twos are 20. Okay, now I have 100 divided by 10, you know that you will get 10. Okay, means 100 is divisible. Now I check 50 divided by 10, you will get 5, you know that it will get cancel. It means divisibility test कहने का मतलब exactly divisible. ठीक है, पूरा divisible हो रहा है. कहने का मतलब ये कि 10 का मल्टीपल है ये, ठीक है ना. 50 10 का मल्टीपल है, तभी तो 10 से डिवाइड होगा. ओके, 10 से एग्जैक्टली तभी डिवाइड होगा ना जब 50 10 का मल्टीपल होगा. 10 5 जा 50, या 10 फैक्टर हो गया 50 का, क्योंकि एग्जैक्ट फैक्टर हो गया, क्योंकि वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसलिए फैक्टर हो गया. ठीक है, फैक्टर इन मल्टीपल में आप ये समझ सकते हैं. सो बट व्हेन आई सी 35 डिवाइडेड बाय 10, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, 10 के टेबल में 10 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 35 मिल जाए? कभी भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता मुझे ऐसा जिससे 10 से मल्टीप्लाई करूं और मुझे आंसर में 35 मिल जाए. तो आपको ऐसा नहीं मिल पा रहा है. इट मीन्स 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. 35 10 का मल्टीपल नहीं है, या 10 35 का फैक्टर नहीं है. सो taking many numbers like this, that which number is divisible by 10, we get to the conclusion that if a number has 0 at one's place, it is divisible by 10, and it is called the divisibility test of 10. ठीक है, या divisibility by 10 अगर हमें ये टेस्ट करना है, चेक करना है, then if a number has 0 at one's place, then only it is divisible by 10. तो इससे हमें पता चला, दिस इज बेसिकली द पैटर्न, और दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्वेशन से हमने ये रिजल्ट निकाले हैं. लाइक वाइज डिविजिबिलिटी बाय 5, यू कैन चेक फॉर 5 योर सेल्फ. यू कैन डू लाइक जैसे मैंने आपको 10 का एक्सप्लेन किया है, यू कैन टेक एनी नंबर एंड यू कैन चेक बाय योर सेल्फ दैट इफ अ नंबर हैज़ आइदर 0, या तो 0 हो एंड में, और 5 एट वंस प्लेस. वंस प्लेस कहने का मतलब ये, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ और आपके पास 500 है, ठीक है,
वंस प्लेस क्या है, ये वाला वंस प्लेस है, तो 0 होना चाहिए वंस प्लेस पर या 5 होना चाहिए, जैसे 25 5 होना चाहिए वंस प्लेस पर, then it is divisible by 5. So therefore it is the divisibility test for 5 that if a number has either 0 or 5 at ones place, it is divisible by 5. Similarly, we will move toward divisibility by 2. Okay. So now when you want to check the divisibility of any given number by 2, what you do, again you follow a pattern, or you check for different number. You checked for different number, like you checked for you see the number 4. सबसे पहले आपने 4 के लिए चेक किया, 2 से देखना है हमें कि डिविजिबल है या नहीं, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है. देन यू चेक फॉर 8, हाँ 2 से डिविजिबल हो रहा है. देन यू चेक फॉर 20, yes it is divisible by 2. Then you check for any number like these are the one digit number, and you can easily see that these are the multiples of 2. Then you take the number 424. Okay, you take the number 424. This is a 3 digit number, and आप directly तो check नहीं कर सकते कि ये multiple है या नहीं, but you will see that if you divide 424 by 2, you will get 2 2s are 4, 2 1s are 2, cancel, and here you get 4, 2 2s are 4. So you get that it is divisible by 2, completely divisible, and you get 0 as a remainder. So checking like this, like another number you take like 2036. Okay, you take this number, if you will divide this by 2, okay, you will get the exactly divisible. It means this number is exactly divisible by 2. So checking like these numbers, you got to the result that a number is divisible by 2 if it has 0 at one's place, it has 2 at one's place, it has 4 at one's place, 6 and 8 at one's place. It means the you can say in a case that even numbers 2 4 6 8 है ना, बाकी नंबर्स तो इन्हीं से मिलेंगे, इन्हीं से बनकर सारे नंबर्स इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर फॉर्म होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, है ना. सभी नंबर्स इन बेसिक 10 डिजिट से ही फॉर्म होते हैं ना, कितना भी लार्ज नंबर हो. सो यू कैन से दैट अगर इवन नंबर, ये वाले इवन नंबर, या आप कह सकते हैं कि 0 2 4 6 8 अगर वंस प्लेस पर प्रेजेंट होंगे तो ही कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है. इट मीन्स अगर 233 है, so at one's place it is there 3 not 2, so this number is not divisible by 2. Okay, so the divisibility test for 2 is a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0 2 4 6 8 in its ones place. Okay, तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर इनमें से कोई डिजिट है वंस प्लेस पर तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3, coming to the divisibility by 3, if the sum of digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3. 3 के लिए हमारे पास क्या टेस्ट है कि अगर आपके पास जो नंबर गिवन है उसकी डिजिट्स का सम, ठीक है, नंबर और डिजिट्स में डिफरेंस है क्लास 6, ठीक है. डिजिट होती हैं आपकी, डिजिट है ये 0 1 2 3 4, दीज आर डिजिट्स. अगर मैं 4134 लिख दूं तो ये एक नंबर है जो कितने डिजिट से मिलके बना है, 4 डिजिट्स से मिलके बना हुआ एक नंबर है ये, ठीक है. तो जैसे इंग्लिश में लेटर एंड वर्ड, लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वैसे ही डिजिट से नंबर बना है आपका, ठीक है. तो दे आर सेइंग 3 के लिए if the sum of digits is a multiple of 3, like I have taken example like 33 में sum of digits कैसे निकालेंगे, 3 plus 3, ठीक है. sum of digits आपने निकाल लिया, वो आपका आया 6, the sum of digits is 6 is divisible by 3, so therefore 33 is divisible by 3, ठीक है. sum of digits अगर 3 से divisible हो जाए तो आपका नंबर भी 3 से divisible हो जाएगा. like you have 240. ओके, 240 आपको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं. आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है बेटा जो मैं इस पेज पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ये बस समझना है. सो 240 आप चेक करना चाहते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स हमें निकालना होगा. सम ऑफ द डिजिट्स 2
का सम 4 से, उसका सम 0 से, तीनों डिजिट्स का सम मैंने करा, आई गेट 6। अब मैं इसको चेक करूंगी, जो सम मुझे मिलेगा इसको चेक करूंगी, यस इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल होने का मतलब है कि 3 से डिविजिबल है एग्जैक्टली। सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, so it is divisible by 3, the sum is divisible by 3, therefore the original number, this original number is divisible by 3. Yes, it is divisible by 3. Okay, so this is the divisibility of 3. If you understand this example and understand the definition, you will remember it, that what is the divisibility test of 3 and how do we check that the given number is divisible by 3 or not. So divisibility by 6, if a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. तो अगर आपको किसी नंबर की divisibility check करनी है by 6, then you have to check that the number is divisible by 3 and 4. 2 and 3. The number is divisible by 2 and 3. अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्यों होता है ऐसा कि हम 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, 6 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है और मैं 2 और 3 से चेक कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 6 के जो 6 के जो फैक्टर्स हैं ना, वो आपके 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो 1 तो आपका फैक्टर है, ठीक है, 6 आपका मल्टीपल भी हो गया, बचे क्या 2 और 3। तो 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होता है, आपको पता है 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर कोई नंबर ऐसा हो जो 2 से डिवाइड करे हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, इसलिए हम 2 और 3 के लिए ही केवल चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो वो 6 से भी नहीं होगा। 2 और 3 बोथ से होना ज़रूरी है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, then it is divisible by 6. Like example 18. 18 it is divisible by 2 because because ones place पर क्या है 8, it is divisible by 2. and 3 के लिए कैसे चेक करेंगे, 1 plus 8 9 divisible by 3, so therefore 2 से भी divisible हो गया 18, 3 से भी divisible हो गया, hence it is divisible by 6. Okay, now moving toward divisibility test for 4. Divisibility by 4, a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by last 2 digits is divisible by 4. So यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, that कि अगर 1 डिजिट नंबर तो आपका 4 से डिविजिबल जो होगा वो ऑब्वियसली 4 है और 8 है, 1 डिजिट, ठीक है ना। उसके बाद आप जब 2 डिजिट में आते हैं तो लाइक 12, लाइक 16, ओके, लाइक 20। सो 2 डिजिट नंबर में आप डायरेक्टली चेक करना होगा आपको कि 4 से डिवाइड करके ही देखना होगा कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। द रूल दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज फॉर अ नंबर विद 3, या तो 3 डिजिट्स हों या 3 से ज़्यादा डिजिट्स हों। 3 से ज़्यादा कितनी भी, 4 डिजिट, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, कितना भी बड़ा डिजिट नंबर, अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल तब होगा इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. Okay, so here you can see that the divisibility criteria by 4 is given for 3 digit number and more than 3 digit number. 2 digit number के लिए divisibility criteria 4 का नहीं है, वहाँ पर आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हैं और इजीली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब 3 डिजिट नंबर है तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, 3 डिजिट नंबर है या 3 से ज़्यादा डिजिट का नंबर है। Like here you can see 836, this is 3 digit number. I want to check if this number is divisible by 4 or not, ठीक है। सो आई विल टेक द लास्ट 2 डिजिट, वंस एंड टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट पर जो नंबर है, I will take that number. The number at last 2 digits is 36. So I will check only for 36, that 36 is divisible by 4. So therefore 836 is divisible by 4. ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका होता 33, 833, तो आप देखते कि लास्ट के 2 डिजिट्स 33 वो 4 से डिविजिबल ना होती, एंड इसलिए हम कहते थे कि 833 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब ये है कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यू हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स, यू हैव टू चेक द नंबर
फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ गिवन 3 डिजिट और मोर देन 3 डिजिट नंबर, ठीक है, उसके लिए होगा. दिस इज द डिविजिबिलिटी बाय 4. नाउ मूविंग टुवर्ड द डिविजिबिलिटी बाय 8, a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits is divisible by 8. ठीक है, तो यहाँ पर 8 के लिए भी 4 की तरह ही है. 8 के लिए आपका अगर 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो आप चेक करेंगे डायरेक्टली उसको डिवाइड करके ही. लेकिन अगर 4 डिजिट नंबर है, जैसे लार्जर नंबर के लिए आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी अवेलेबल है. सो 4 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट से ज़्यादा का नंबर है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, वो 8 से डिविजिबल होगा इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8. ठीक है, अगर लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, लाइक 200 हेयर 9216 नंबर मैंने लिया है, इज डिविजिबल बाय 8, ये डिविजिबल बाय 8 है बिकॉज 216 लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है इज डिविजिबल बाय 8. मतलब मैं चेक कर सकती हूँ कि 8 से 216 को मैं सिर्फ चेक करूंगी, लास्ट 3 डिजिट नंबर को. आई कैन चेक 8 2 16, आई गेट 5 हेयर, 6 will come and 8 7s are 56, so I will get 0 as remainder. It means 27 are, it means the 216 is divisible by 8, therefore I will say that this whole number 9216 is divisible by 8. So these are the very simple divisibility criteria, but the main thing is that you have to remember them, and when you practice more and more questions you will just learn all the divisibility criteria at your tips. Okay, so now the two remaining divisibilities criteria are divisibility by 9. So the 9 का divisibility criteria भी 3 के जैसा ही है, similar. If the sum of digits of a number is divisible by 9, ठीक है, the given number is divisible by 9. So 3 के लिए क्या था कि आपके sum of digits जो है वो 3 से divisible हो जाएं, तो वो sum अगर 3 से divisible हो गया then the number will also divisible by 3. Similarly in the case of 9, when you want to check a number whether it is divisible by 9 or not, what you will do, you will just sum up the digits of the number and the sum should be divisible by 9. You will check the sum, it should be divisible by 9. If the sum of the digits is divisible by 9, then the given number is divisible by 9. Here in the example you can see that I have taken the number 54, and if I do the sum 5 plus 4, it is equals to 9 and is divisible because 9 is divisible by 9, so 54 is divisible by 9. So the sum should be divisible by 9 and then the number will become divisible by 9. Now divisibility by 11 is also simple, but you have to understand more here. Okay, you have to take care of the two things, odd and even places and sum and difference. ठीक है, तो आपके पास मेनली 2 थिंग्स आ गए, odd even places and sum and difference, जो आपको divisibility by 11 में थोड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है. Now divisibility by 11 का क्या क्राइटेरिया है? A number is divisible by 11 if what you will do, find the difference between the sum of digits at odd places. जो odd places पर digits हैं उनका sum निकालेंगे, and sum of the digits at even places of the number. और जो even places पर digit हैं उनका अलग से sum निकालेंगे. The difference of these two sums, जो आपने 2 sum निकाले हैं, एक odd places का एक even places का, इनका difference, if the difference is divisible by 11, या आप कहें कि इफ़ द डिफरेंस इज आइदर 0 या तो डिफरेंस 0 आ जाए, ठीक है, और द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. यू कैन सी विद द एग्जांपल दिस आई हैव टेकन 10,824. ओके, सो हेयर यू कैन सी दैट दिस इज द एंड द नंबर, द ओड एंड इवन प्लेसेस शुड बी चेक्ड फ्रॉम द राइट. ओके, राइट से ही चेक करेंगे आप, क्योंकि यही आपका वंस प्लेस है, ठीक है, वंस प्लेस आपका राइट से है, सो यू विल चेक फ्रॉम द राइट. सो दिस इज योर ओड प्लेस. ओके, दिस इज इवन क्योंकि ये कौन सा प्लेस है, फर्स्ट, ये 2 है, सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है. दिस इज अगेन ओड. दिस इज इवन क्योंकि ये फोर्थ प्लेस है आपका, 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस है ना, तो ये इवन है. ये वाला आपका ओड है, ठीक है. तो आपको ओड प्लेसेस का सम कर दीजिए, सम ऑफ ओड प्लेसेस. ओड प्लेसेस कहने का मतलब है वो डिजिट्स जो ओड प्लेसेस पे
प्रेजेंट हैं. सो ऑड प्लेसेस का सम क्या होगा? 1 + 8 + 4. इट मीन्स 1 + 8 + 4, what you will get? 13. ओके. नाउ अब इवन प्लेसेस देखिए, क्योंकि ये ऑड था तो ये सेकंड प्लेस आपका इवन है, ये 3 था, ये फोर्थ प्लेस है, तो ये इवन है. ठीक है. सो आपको इवन प्लेसेस पर क्या सम मिला? सम ऑफ इवन प्लेसेस. अब इवन प्लेसेस कौन कौन से थे? ये 0 और इसका सम किया आपने 2 के साथ, यू विल गेट 2. अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस निकालने के बाद आप इनका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस ऑफ सम ऑफ बोथ प्लेसेस मतलब ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का डिफरेंस आपने किया तो 13 - 2, व्हाट यू विल गेट? 11. सो जो ये डिफरेंस आपको मिला है ये हमारा टारगेट है, इसको हमें चेक करना है. अब ये डिफरेंस निकालने के बाद इसको चेक करना है कि या तो ये 0 हो या ये डिविजिबल बाय 11 हो. तो ये 0 तो नहीं है लेकिन 11 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11. दिस इज divisible by 11. So the given number 10,824 is divisible by 11. Okay, so what we did, you have to check from the right side the first place 1 2 3 4 5. you know that 1 3 5 are odd places. तो odd places का आपने सम कर लिया, even places का आपने सम कर लिया, डिफरेंस निकाला इन दोनों सम का, माइनस किया इन दोनों को डिफरेंस निकालने के लिए. जो आपका ये डिफरेंस आएगा इसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 11, या तो ये 0 हो या ये डिविजिबल बाय 11 हो. दिस इज बेसिकली योर डिविजिबिलिटी बाय 11. सो यू हैव अंडरस्टूड द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, दैट हाउ डू वी चेक दैट अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर और नॉट. ओके. So this is the explanation before, and after this there is your exercise 3.3 which is very simple, just based on these divisibility criteria. You should watch the video carefully and understand each and every concept by heart. Okay, then you will be able to solve all the questions by yourself. Like checking here, see, giving a first rough idea about the questions, you can see that using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 2 3 4 5 6 8 9 10 11. उन्होंने क्या किया, एक ही टेबल में आपके लिए आपको सबसे डिविजिबिलिटी चेक करा रहे हैं. इसका मतलब कि इस नंबर की डिविजिबिलिटी आप अगर 2 से भी 3 से भी 4 से सबसे चेक कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर अप्लाइंग all the divisibility test for this only particular number. Okay, like this number. So इस टेबल से ही आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. इट मीन्स कि अगर आप सबसे पहले आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है 990 की. ठीक है. सो 2 से चेक करने के लिए आप डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे अपने नोट्स में, एंड यू हैव रिटन दैट वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ होना चाहिए तो आपका डिविजिबल हो जाएगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वंस प्लेस पर 0 है, सो यू विल डायरेक्टली से यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2. ओके. 3 के लिए आपके पास 3 के लिए क्राइटेरिया है. मैं थोड़ा स्पीड में फास्टली आपको ये रिवीजन करा रही हूँ. आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो मैं बोल रही हूँ. ठीक है. सो 3 के लिए आपके पास क्राइटेरिया था कि सम डिविजिबल बाय 3 हो जाए. तो 9 + 9 + 0 क्या सम आएगा? 18. अब 18 को आपने चेक किया कि डिविजिबल बाय 3 है, सो देयरफॉर इट इज़ यस. अब 990 है, 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि लास्ट की 2 डिजिट आपकी डिविजिबल हो जाए बाय 4. सो 990 की डिविजिबिलिटी आप 4 से चेक करना चाहते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट बाय डिविजिबल हो जाए 4 से. तो आपने लास्ट की 2 डिजिट को 4 से चेक किया. यू कैन सी दैट यू विल डू 4 2 = 8 एंड यू विल गेट 10. अब कुछ नहीं है ऐसा कि जिसको चलने के बाद आपको यहाँ रिमाइंडर 0 मिल जाए. ठीक है. आप 4 2 = 8 चलेंगे एंड यू विल गेट 2 एज रिमाइंडर. ओके, यू विल गेट 2 एज रिमाइंडर. सो यू आर नॉट गेटिंग 0 एज रिमाइंडर, तो ये आपका लास्ट की 2 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से,
तो ये आपका 9 हो जाएगा. ओके, नाउ 5 से डिविजिबिलिटी देखिए. 5 से you should have 0 or 5 at one's place. So here 0 is present. So yes, it is divisible by 5. Now 6 से divisibility 2 से divisible होना चाहिए और 3 से divisible होना चाहिए. So here you can see that 2 से भी divisible है, 3 से भी divisible है. Therefore it is divisible by 6. 8 से divisibility के लिए 8 से divisibility के लिए आप चेक करेंगे पूरे नंबर को डिवाइड करके एंड यू विल गेट दैट 9 आएगा इसका आंसर. क्योंकि 4 से भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा तो 8 के मल्टीपल 8 4 का मल्टीपल होता है तो उससे भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा. लेकिन ऐसा हर सिचुएशन में ट्रू नहीं होता है, तो आपको 8 से इसका कम्प्लीटली डिवाइड करके ही देखना होगा क्योंकि 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए 4 डिजिट और मोर देन 4 डिजिट नंबर अवेलेबल है. 9 के लिए आप अगेन सम करेंगे, यू विल गेट 18. इट इज़ डिविजिबल बाय 9, सो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9. 10 के लिए वंस प्लेस पर 0 है, yes it is divisible by 10. okay, now 11 के लिए 990. 11 का divisibility अगर आपको देखना है तो वंस प्लेस पर क्या है, आपका ओड प्लेसेस देखिए. आप ओड प्लेसेस का सम करेंगे तो ओड प्लेसेस, ये ओड प्लेस है, उसके बाद ये इवन है क्योंकि ये 2 प्लेस है, ये 3 प्लेस है तो ये ओड है. ओड का सम कीजिए 9 प्लस 0, व्हाट यू विल गेट 9. इवन प्लेस का सम कीजिए, इट इज इवन प्लेस यहाँ पर बस एक ही है, ये 2 है ना, तो ये आपका इवन है तो इट इज 9. सो इवन प्लेस का 9 हो गया. अब इनका डिफरेंस देखिए, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो 0 आ रहा है तो हमने क्या देखा था डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में, या तो 0 आ जाए डिफरेंस या डिविजिबल बाय 11 आ जाए. तो यहाँ पर ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 11 हो गया. सो लाइकवाइज you will complete the whole table. And also in the question number 2 you have to determine whether the given number are divisible by 4 and by 8. पहले 4 से चेक करेंगे सबका, फिर 8 से चेक करेंगे. 3 में 6 से चेक करना है. इट मीन्स 6 से चेक करने के लिए पहले 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे. इसी नंबर को 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, फिर लिखेंगे कि इट इज़ डिविजिबल और नॉट. I will be giving the solution for 1 or 2 part in the Google Classroom, and you will complete all of the part by yourself. Class 6, focus on this point that you will complete all other parts by yourself, just referring to those part that I will provide you in the Google Classroom. So this is all for today, and watch the complete video, watch all the divisibility tests and complete your exercise 3.3. okay, so thank you class for watching the video, and please share and subscribe the channel so that more students can get the benefit of learning mathematics NCERT of class 6 and of other classes 7, 8 and 9 in this period. So, and stay happy and stay safe at home.